Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 5, data handling. In our previous class we discussed what is pie chart and how do we make it. Today we will be doing exercise 5.2 based on it. Here is the first question. Here one pie chart has been given and the question says a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart, answer the following questions. So, one survey was made and what was asked? The favorite music from a group of people. And 40% people said that they like light music, 20% people said that they like semi-classical music, then 10% people said that they like classical music, and 30% people said that they like folk music. Now, a few questions have been asked and accordingly by looking at this pie chart, we will be answering them. What is the first question? If 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए हैं ये परसेंटेजेस में दिए हैं और यहाँ पर क्लासिकल म्यूज़िक के लिए हमें नंबर एग्जैक्ट नंबर भी बताया है कि 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक. तो जो यहाँ क्लासिकल म्यूज़िक के लिए 10% बताया है, ये 10% लोग कितने हैं? 20 लोग हैं, 20 पीपल हैं. तो एक्चुअली टोटल कितने पीपल का सर्वे हुआ था ये हमसे पूछा है. तो यहाँ हमें लिखना चाहिए कि 10% it is representing 20 people. यही मतलब हुआ कि 10% का मतलब कितने पीपल? 20 पीपल. तो अब इससे हम 1% निकाल सकते हैं. 1% represents 20 अपॉन 10. ये 10 डिवीजन में चला जाएगा. जब हम एक के लिए फाइंड आउट करते हैं, 1 का अमाउंट या फिगर फाइंड आउट करते हैं तो 10 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. डिवाइड करते हैं हम तो 20 अपॉन 10 इट इज़ इक्वल टू 2 पीपल. इसका मतलब 1% इज रिप्रेजेंटिंग 2 पीपल. और अब सर्वे कितने लोगों का हुआ है? 100% पीपल. सर्वे में तो ये पूरे 100% पीपल इंक्लूड हुए हैं. तो 100% मीन्स हाउ मेनी पीपल? 100% represents how many people? 2 into 100, that is 200 people. समझ में आया आपको कि 10% represent कर रहा है 20 people को, तो इसका मतलब 1% सिर्फ 2 people को represent कर रहा है और हमने सर्वे किया 100% people का, तो 100% represents 2 into 100, that is 200 people. And so we can write the final answer that how many young people were surveyed? 200 people were surveyed. This is the final answer of this particular question. Then we have one more question. Which type of music is liked by the maximum number of people? Maximum number, सबसे ज़्यादा लोगों को कौन सा म्यूज़िक पसंद आ रहा है? और आप बताइए जिसका फिगर सबसे बड़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर बड़ा है, वो हो गया सबसे फेवरेबल म्यूज़िक. और आप देखिए लाइट म्यूज़िक इज़ 40%, फोक म्यूज़िक इज़ 30, 10 एंड 20. तो जाहिर सी बात है लाइट म्यूजिक 40%, इट इज़ बीइंग फेवर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, एंड सो वी कैन राइट दैट लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. It's very much clear from this figure. Then we have one more question. If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? एक कैसेट कंपनी है जो 1000 सीडीज़ बनाना चाहती है म्यूज़िक की, अलग अलग म्यूज़िक की,
तो हर तरह के म्यूज़िक की कितनी कितनी सीडीज़ उसे बनानी चाहिए। तो जितना जिसको पसंद है उसी रेशो में सीडीज़ बननी चाहिए। 40% लोग लाइट म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं तो 40% ही हमें लाइट म्यूज़िक की सीडीज़ बनानी चाहिए। इसी तरह से फोक म्यूज़िक की 30% सीडीज़ बननी चाहिए और क्लासिकल म्यूज़िक की 10%, सेमी क्लासिकल म्यूज़िक की 20% सीडीज़ बननी चाहिए। अब ये 40%, 10% ये किसका 40%? 40% ऑफ व्हाट? 30% ऑफ व्हाट? ऑफ दिस नंबर 1000. So we write here total number of CDs it is equal to 1000. Now number of CDs of light music, it should be 40% of 1000. 40% you can see light music की सीरीज़ कितनी होनी चाहिए? 40% of 1000. और ये कैसे निकलेगा? 40% मीन्स 40/100 ऑफ के लिए इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000. कैंसिल द 2 zeros, it will be equal to 400 CDs of light music. Similarly, we can find the number of CDs of semi-classical music. And it will be 20%. You can see it's 20% of 1000. And what will it be? 20/100 into 1000. Cancel the 2 zeros. You will get it as 200 CDs of semi-classical music. So we have found the number for this, the number for this. Next we will take classical music. Number of CDs of classical music. It will be how much? 10% of 1000. And this will be equal to 10/100 into 1000. Cancel the 2 zeros, you will get it equal to 100 CDs of classical music. And in last we have the folk music, which is 30%. We can write it here. Number of CDs of folk music, it's 30%, and so it will be 30% of 1000. And if you find it out, it will be 30/100 into 1000. Cancel the 2 zeros, it will be equal to 300 CDs. So in this way 300 CDs of folk music will be made, then 100 for classical music, 200 of semi-classical and 400 of light music. Got it? So this was your question number 1. We move on to question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons: rainy season, winter season and summer season. कुछ लोगों में सर्वे किया गया कि आपको कौन सा सीज़न फेवरेट लगता है, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न या फिर समर सीज़न. और उसके लिए हमें ये डेटा मिला. समर सीज़न के लिए 90 वोट्स मिले, रेनी सीज़न को फेवर करने वाले 120 वोट्स थे और विंटर सीज़न को फेवर करने के लिए 150 वोट्स थे. नाउ द क्वेश्चन इज विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स. बताइए किस सीज़न को मैक्सिमम वोट्स मिले. और आप देखेंगे winter got the maximum votes 150. So we write the first answer. Winter season got the most votes.
It's very easy and very clear from the figure. Then find the central angle of each sector and draw a pie chart to show this information. So we will be finding the central angle for each of these seasons, and this will be done with the help of this table. You can see again we need to mention the total angle at the center of a circle, which is 360 degree, and also we need to know the total number of votes. Let us find the sum of the votes. It's 0, then 9 and 2, 11 and 5, it's 16, and 1, 360. So the total number of votes is also 360 degree, 360. The total votes, it is also equal to 360, and the angle at the center of a circle is also 360 degree. Now we make a table to find the central angle. First of all we will find the fraction related to each of these numbers. Fraction कैसे निकालेंगे? ये 90 वोट्स है, कितने वोट्स में से? टोटल वोट्स कितने हैं? 360, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 90 अपॉन 360. ठीक है, अब यहाँ पर आप कैंसिल करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि बाद में मुझे 360 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो लेट इट बी लाइक दिस. Then 360 will be cancelled by 360 and it will be easy. But still if you want we can write it as 1 by 4. Then it's 120 upon 360 and it will be equal to 1 by 3, and it's 150 upon 360 and it will be equal to, if we divide by 3, 3 5s and 3 12s, 5 by 12. These are the fractions related to these numbers. अब हम इनके सेंट्रल एंगल निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? इन्हीं फ्रैक्शंस को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे. 360 डिग्री, इस 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हुए हमें 360 डिग्री के पार्ट्स मिल जाएंगे जो हमें पाई चार्ट बनाने में हेल्प करेंगे. सो वी फाइंड द सेंट्रल एंगल. लेट अस मल्टीप्लाई 1 by 4 by 360 डिग्री. You will get it as 90 डिग्री. या तो आप इस तरह से लिखिए, या आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर हम डायरेक्टली ये भी लिखें 90 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री. आप देखिए ये दोनों नंबर्स कैंसिल होके ईजीली हमें 90 डिग्री मिल रहा है. यहाँ पे आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं. सिमिलरली इफ़ वी राइट हियर 120 अपॉन 360 into 360, you will get it as 120 degree, and 150 upon 360 into 360 you will get it as 150 degree. तो आप देखिए कि हम ये फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है स्किप करके डायरेक्टली भी सेंट्रल एंगल निकाल सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल and it's easy also. So from next time we can skip this part of finding the fractions and straight away we can also find out the central angle. Also you can find 1 by 3 of 360 degree or 5 by 12 of 360 degree. जो भी आपको easy लगे according to the question आप वैसे कर सकते हैं. अब हम इन्हीं angles के basis पे पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे. उसके लिए हमें एक सर्कल बनाना होगा कंपास को यूज़ करते हुए. उसका सेंटर मार्क करेंगे और एक रेडियस चाहिए होगा जिसके बेसिस पे, जिस पर हम ये अलग अलग एंगल्स ड्रॉ करेंगे. सो वी हैव हियर द सर्कल. लेट अस ड्रॉ इट्स रेडियस. ये एक रेडियस भी हमने इसका ड्रॉ कर दिया है. नाउ लेट अस राइट डाउन द एंगल्स. वी नो समर, it is being represented by an angle of 90 degree. Then we have the season rainy and winter, rainy season and winter season. The angles are 150 degree for winter and 120 degree for rainy season, 120 and 150. Now we can easily draw. Let us bring one protractor here, bring it here, overlap the two centers and the two lines. One is the radius and the other one is the line of the protractor. In this way overlap the two lines, radius and the line of this protractor, and the centers also
keep one over the other. Now 90 degree angle, it's very easy. 90 डिग्री स्ट्रेट अवे यहाँ पर है हमारा 90 डिग्री. इसको साइड पे करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के लिए. आप देखिए यहाँ पे मेरा येलो डॉट है और यहाँ तक ही लेना है हमें, तो ये हो गया 90 डिग्री एंगल. Let us mark it as 90 degree and it is representing the summer season. So we can write here summer. Okay, next we have 120 degree angle. For this we will again take the help of this protractor, keep it here, and this time we will take this radius, this as the radius. We will rotate it in this way. And yes, now the line of the protractor and this radius 90 degree line, they both are overlapping, and now it's easy to draw the angle of 120 degree. Starting from this 0, it will be here, somewhere here, in this way. Here we can again keep it aside and now join the 2 points using a pencil and scale in this way, and then remove it from here and just keep it till here. Now this is an angle of 120 degree and it is representing the rainy season. So we can write here rainy season, and yes, the leftover angle will be of measure 150 degree automatically by itself, and it is representing winter. Now you can easily color and you can do shading by different colors also. I am coloring it, only shading it. You can fill the colors completely to make it look very beautiful or more beautiful. Then let me color it. In this way, this is a pie chart representing the given data. Then we move on to the next question. Draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. Here we have been given one data where different people were asked what color do they prefer, which is their favorite color, and 18 people said that their favorite color is blue, 9 people liked green color, 6 people liked red color, 3 people liked yellow color, and the total number of people who were surveyed, it is equal to 36. Now we have to make a pie chart representing this data. Pie chart के लिए एक सर्कल चाहिए होगा और इन सब के लिए हमें वहाँ बीच में सेक्टर्स बनाने होंगे, उनके एंगल्स चाहिए और एंगल्स किस रेशो में होंगे, जिस रेशो में ये गिवन नंबर्स हैं. आप देखिए 18 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 18 वोट्स कितने में से हैं? 36 वोट्स में से. 18 पीपल आउट ऑफ 36 पीपल. तो हम फ्रैक्शन कैसे लेंगे? 18/36. इसी तरह से 9/36, 6/36 और 3/36. उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं. एज यूजुअल वी वर डूइंग. First we will write down the total angle at the center of a circle, which is 360 degree, and then we will make a table to find the central angle of each sector, and this time we can straight away directly find the central angle. Let us find the central angles. 18, it is out of 36, so it will be 18/36 और multiply बाय 360. अब इसको 360 से मल्टीप्लाई करेंगे. फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? 18/36 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम 360 डिग्री से, तो स्ट्रेट अवे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया है. नाउ सॉल्व इट एंड यू विल गेट इट एज कैंसिल इट बाय 10, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट 9 का फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? ये 9 पीपल हैं 36 पीपल में से जिनको ग्रीन कलर पसंद है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 9/36. अब इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम 360 डिग्री का पार्ट निकालेंगे. कैसे? इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके. लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 360 डिग्री. कैंसिल द टू नंबर्स, 10 एंड इट्स 90 डिग्री. इसके बाद अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे उन लोगों का जिन्हें
रेड कलर पसंद है. 6 people like रेड कलर आउट ऑफ 36 people. तो रेशो या कह लीजिए फ्रैक्शन क्या हो गया, 6/36. ये फ्रैक्शन है उन लोगों का जिन्हें रेड कलर पसंद है. और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 डिग्री से, तो ये हमें मिलेगा 60 डिग्री एंगल. इसी तरह से 3 people लाइक येलो कलर और उनका फ्रैक्शन हो गया 3/36. और इसके अकॉर्डिंग 360 डिग्री में से कितना एंगल बनेगा, इट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. And if you add, you will get the sum of these angles as 360 degree. Now we will make a pie chart. We will again draw one circle, mark its center, mark one of its radii, and then we will be using a protractor to make the different angles. For this, first of all, let us note down the angles. We need to draw 180 degree angle, 90, 60 and 30. 180 degree angle, 90 degree, 60 degree and 30 degree. Let us write down the colors also. Blue, green, red and yellow. Blue, green, red and yellow colors. Okay. Now it's easy for us. Just place the protractor here, coincide both the centers, center of the protractor and that of the circle. Overlap the two lines. Now we need to draw 180 degree angle. यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग और 180 यहाँ पर जाकर एंड हो रही है here. And this way, just keep it aside for a while. We can draw from here a line. यहाँ तक 180 है और इसको हम यहीं तक स्ट्रेच करेंगे इस तरह से. In this way, we get an angle of 180 degree at the center and it is representing which color? Blue color. So, we can write here blue. Next, we will draw an angle of 90 degree. We bring the protractor here and this time we will have to rotate it. इसको rotate करेंगे इस तब तक जब तक कि प्रोट्रैक्टर की लाइन और ये जो नया रेडियस बना है दोनों आपस में एक दूसरे के कोइंसाइड ना कर लें. तब तक हमें देखिए अब एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं. इस तरह से ओवरलैप करते हुए नए रेडियस पे, पहले पुराना रेडियस यहाँ था, नया रेडियस अब यहाँ पर है, उसके ऊपर ओवरलैप किया है हमने. और अगला एंगल है 90 डिग्री. अब देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 और 90 डिग्री यहाँ पर आएगा आपका. लेट अस कीप इट असाइड फॉर अ वाइल. और अब हम फिर से इनको ज्वाइन करेंगे इस तरह से. यहाँ तक बनता है हमारी लाइन और यहीं तक रखेंगे हम हमारा सर्कल जहाँ तक है. और यहाँ हम मेंशन करेंगे 90 डिग्री एंगल एंड इट इज़ रिप्रेजेंटिंग विच कलर? ग्रीन कलर. सो वी कैन राइट हियर ग्रीन. नेक्स्ट अगेन वी नीड टू ड्रॉ 60 डिग्री एंगल. कीप इट हियर और इसको फिर से रोटेट करेंगे. अब की बार हमारा नया जो रेडियस है उससे कोइंसाइड करेंगे प्रोट्रैक्टर की लाइन को. इस तरह से आप देखिए दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं. यहाँ नया रेडियस है, यहाँ से 60 डिग्री मेजर करेंगे, 0, 10, 20 और यहाँ हमारा 60 डिग्री एंगल है. वी कीप इट असाइड एंड नाउ वी कैन इवन रिमूव इट फ्रॉम द सेंटर. जॉइन दिस पॉइंट. ठीक है, और ये यहीं तक रखेंगे हम. ये हो गया आपका 60 डिग्री एंगल और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेड कलर. यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेड कलर and then in last this will automatically be equal to 30 degree and it is representing yellow color. In this way we have drawn a pie chart which is representing this data. Got it? Then we have the next question. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in these subjects. There are different subjects. इन सब्जेक्ट्स में जो बच्चे ने मार्क्स स्कोर किए हैं उसके लिए हमें ये एक पाई चार्ट दिया हुआ है. इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540, स्टूडेंट से जो टोटल मार्क्स स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं वो है 540, देन
Answer the following questions. In which subject did the student score 105 marks? आप पहले तो हम पाई चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं. आप देखिए ये पाई चार्ट है और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश. और यहाँ पर हमें सिर्फ ये एंगल्स दिए हैं सेक्टर्स के, मार्क्स नहीं दिए हैं कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए या साइंस में कितने मार्क्स हैं या सोशल साइंस में कितने मार्क्स हैं. सिर्फ हमें यहाँ पर सेंट्रल एंगल बताया हुआ है. उनको यूज़ करते हुए हमें अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. सबसे पहले हमें जो दिया है वो ये है कि जो टोटल मार्क्स स्टूडेंट को मिले हैं वो है 540 मार्क्स और टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री. सेंटर पे टोटल एंगल 360 डिग्री है और टोटल मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के मिला के 540 हैं. तो यहाँ दोनों में कुछ रिलेशन मिल रहा है हमें. आप देखिए हिंट में भी दिया है फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज़ 360 डिग्री. इसका मतलब जो टोटल एंगल है और टोटल मार्क्स हैं वो दोनों एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर. और उसको हम किस तरह से करेंगे प्रेजेंट. फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री. यू कैन सी. ठीक है, तो अब 1 मार्क के लिए कितना डिग्री एंगल होना चाहिए. पहले हम 1 का निकालेंगे और फिर 105 पे चलेंगे. हमें क्या निकालना है कि 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा. हमें ये पता है कि 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल है 360 डिग्री. और अब हम पहुँचेंगे 105 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा. 105 तक पहुँचने के लिए बीच में हमें 1 मार्क के लिए भी एक एंगल मेजर निकालना होगा. और वो कैसे निकलेगा. फॉर 1 मार्क इट विल बी 360 डिग्री अपॉन 540. ये समझते हैं ना आप. जब 1 के लिए हमें निकालना है तो हम इसमें डिवीजन करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली 1 मार्क के लिए सेंट्रल एंगल छोटा होगा. छोटी क्वांटिटी के लिए हम डिवीजन करते हैं तो 360 अपॉन 540 करेंगे. और फिर 105 जो हमें निकालना है उसके लिए एंगल निकालना है 105. अब एक से हम ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हमें यहाँ पर 105 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें 105 के अकॉर्डिंग या करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा. नाउ वी विल जस्ट राइट इट हियर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. हाउ वी विल राइट. लेट मी मेक सम स्पेस हियर. We can write for 540 marks the central angle is 360 degree and for 105 marks the central angle it will be equal to 360 upon 540 into 105. Now we can easily divide the numbers. 0 and 0 get cancelled. We can divide by 18. 18 2s are 36. 18 3s are 54. Then it's 2 into cancel the numbers. 3 1s are 3. 3 3s are 9 and 5s are 15. 2 into 35. It's equal to 70 degree. Now we are finding the angle. तो इसका मतलब 105 मार्क्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 70 डिग्री एंगल को या कह लीजिए 70 डिग्री एंगल 105 मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा. नाउ व्हाट इज़ द क्वेश्चन. इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. तो जिस भी सब्जेक्ट का सेंट्रल एंगल 70 डिग्री होगा उस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आएंगे. तो हम देखते हैं यहाँ पर 70 डिग्री एंगल है हिंदी में. आप देखिए 70 डिग्री एंगल, इसका मतलब 105 मार्क्स जो मिले हैं स्टूडेंट को वो हिंदी सब्जेक्ट में है. सो वी राइट हियर द स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 105 मार्क्स in Hindi. Clear? Then we take up the next question in the same question, the next part. How many more marks were obtained by the student
in mathematics than in Hindi. अब हमें हिंदी के मार्क्स तो पता चल गए हैं, 105 मार्क्स हैं, अभी हमने निकाले थे, और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि मैथ्स में कितने मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से. ऑब्वियसली मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा ही हैं, इसका एंगल 90 डिग्री है, इसका 70 डिग्री है, तो फिगर को देखते ही ये तो पता चल रहा है कि मैथ्स में मार्क्स हिंदी से ज़्यादा हैं, पर कितने ज़्यादा हैं उसके लिए हम मैथ्स के भी मार्क्स निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट 360 डिग्री represents 540 मार्क्स. ये हमें पता है कि टोटल एंगल 360 डिग्री है और टोटल मार्क्स भी 540 मार्क्स हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अब हमारे पास मैथ्स का एंगल कितना है? 90 डिग्री. तो 90 डिग्री कितने मार्क्स को करस्पॉन्ड करेगा? उसके लिए हम निकालेंगे 90 डिग्री रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी मार्क्स? 540 अपॉन 360 इंटू 90. ठीक है, आप यूनिटरी मेथड यहाँ पे लगा लीजिए. 360 डिग्री 540 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 डिग्री कितनों को रिप्रेजेंट करेगा? 540 अपॉन 360, और फिर इंटू 90 करने से 90 डिग्री का मार्क्स, करस्पॉन्डिंग मार्क्स हमें मिल जाएंगे. Let us now cancel the numbers. 9 ones are 9, 9 fours are 36, 4 ones are 4, then 4 threes are 12, and 4 fives are 20. 135 marks in maths. So, marks in maths, they are 135. And now, how much is the difference between the marks in maths and Hindi? Difference between the marks in maths and Hindi, it is equal to 135 minus 105. Just remember it, marks in Hindi were 105 and it is equal to 30 marks. So the difference between maths and Hindi marks, it's 30. And how many more marks were obtained in maths? 30 marks were obtained more in maths than Hindi. So this is the answer to this question. I hope it's very much clear to you. Then we take the next question in the same one. Next part, examine whether the sum of marks obtained in social science and maths is more than that in science and Hindi. हमसे पूछ रहे हैं कि क्या सोशल साइंस और मैथ्स के जो मार्क्स का सम है वो ज़्यादा है साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से. तो उसके लिए हमें मार्क्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे सेंट्रल एंगल से ही पता कर सकते हैं. हमें पता करना है मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस, इन दोनों का सम. तो दोनों के एंगल्स का सम निकालते हैं. इट्स 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री. सो वी फाइंड द सम ऑफ central angles of social science and maths. कितना हो गया? हमने अभी अभी देखा था social science और maths 65 and 90. Let us write it here. 65 degree plus 90 degree. It is equal to 155 degree. अब इसी तरह से साइंस और हिंदी के मार्क्स का सम निकाल लेते हैं. उसके लिए सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स निकालेंगे. सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ साइंस एंड हिंदी, it is equal to how much? Let us look here. Science and Hindi 80 degree and 70 degree. Let us write it down here. 80 degree
प्लस 70 डिग्री एंड इट इज़ इक्वल टू 150 डिग्री। अब आप एंगल्स का सम देखिए, ये सम बड़ा है और 150 छोटा है। यू कैन सी 155 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 150 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि एंगल्स का सम मैथ्स और सोशल साइंस का बड़ा है साइंस और हिंदी के सम से, तो इसी तरह से साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स का सम भी ज़्यादा होगा साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से। सो वी राइट हियर दैट येस, examine whether the sum is more than that. Yes, the sum of marks in obtained in social science and maths. Okay, let us write it in the same way. Obtained in social science and maths is more than that in science and हिंदी। ठीक है, तो यहाँ बिना एक्चुअली मार्क्स निकाले हमने सेंट्रल एंगल से ही बता दिया कि हाँ मैथ्स और साइंस, सोशल साइंस का सम ज़्यादा होगा साइंस और हिंदी के सम से, मार्क्स के सम से। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज़ गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। यहाँ पर एक हॉस्टल में कुछ बच्चे हैं, उनका जो लैंग्वेज है उनकी, उसका सर्वे किया गया और पाया गया कि हिंदी लैंग्वेज के 40 स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश लैंग्वेज 12 स्टूडेंट्स, मराठी स्पीकिंग चिल्ड्रन वर 9, तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट्स वर 7, बंगाली स्पीकिंग स्टूडेंट्स वर 4 and total students they were 72. Now this data has to be represented in a pie chart. तो हम उसके लिए एक टेबल बनाएंगे। Again the total angle at the center is 360 degree and we will make this table to find the central angle related to each of these numbers. उसके लिए हमें फ्रैक्शन निकालना होगा पहले हर फिगर का, और हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इट इज़ 72. So let us mention it also here. Total number of students it is equal to 72. तो अब हम जब फ्रैक्शन निकालेंगे तो 40/72, क्योंकि 72 स्टूडेंट्स में से ही तो 40 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सो वी विल फाइंड द सेंट्रल एंगल। लेट मी मेक सम स्पेस इन दिस वे। यस, 40/72 ये तो हो गया फ्रैक्शन। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो 360 डिग्री में इसी तो एंगल बनेगा, उसका एक पार्ट होगा 360 डिग्री का, और इसलिए अब हमें इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें 360 डिग्री का एक पार्ट मिल जाएगा, एक एंगल मिल जाएगा। सो लेट अस नाउ डिवाइड द नंबर्स, 360 and 72. Yes, it's 10/2 and it's 5. 5 4s are 20. It's 200 degree. Okay, now 12/72 into 360 डिग्री। आप देखेंगे बार बार वही कैलकुलेशन आएंगी क्योंकि सेम नंबर्स हैं 72 और 360। तो आप ये देखिए एक बार फिर से हम कर लेते हैं। 36 1s are 36 and 0, 36 2s are 72, then cancel 2, 5 times 10, 12 5s are 60 डिग्री। तो एक्चुअली हमें 5 मिल रहा है यहाँ पे डिवाइड करने पे, और 5 से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ ऊपर 200 मिला, नीचे 60। नाउ 9/72 इंटू 360 डिग्री। तो स्ट्रेट अवे हम 5 से कैंसिल कर देते हैं, 9 5s are 45 और 7/72 इंटू 360 डिग्री, कैंसिल इट 5 टाइम्स,
you will get it as 35 degree. And now one more has been left, 4 upon 72 into 360 degree, it's equal to, cancel it 5 times, 4 5s are 20 degree. Now we have got all the angles, and now simply we need to make the pie chart. For this again we need one circle, mark its center, draw one of its radii. Now let us write down the figures once again here so that it is easy for us to make. They are 200 degree, 60 degree, 45 and 35. 200 degree, 60 degree, then next is 45, 35 and 20 degree. Let us write down the languages also. Hindi, English, Marathi. Hindi, it's English, then Marathi, and the remaining languages are Tamil and Bengali. Tamil and Bengali. Now it's very easy for us to draw the pie chart. For this we need one protractor. Let us bring it, keep it here at the center. Now we know that the first angle is to be drawn, that is of measure 200 degree, but 200 degree is greater than 180 degree and we have only 180 degree measure in this protractor. So let us start in the reverse order. Let us make the angle of 20 degree first. We have the line here, radius here, 20 degree, it's here. Let us draw the line, keep it aside for a while. 20 डिग्री के लिए यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे इसको और यहीं पर रोक लेते हैं. तो ये हो गया हमारा पहला एंगल विच इज़ 20 डिग्री. देन द नेक्स्ट एंगल इज 35. लेट अस कीप इट हियर. वी विल रोटेट इट. अब नई जो रेडियस बना है उससे इसको कोइंसाइड करेंगे और अब 35 डिग्री एंगल बनाते हैं. यहाँ से लेंगे, रेडियस इस तरफ है तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 10, 20, 30 और यहाँ आएगा आपका 35. इसको फिर से साइड पे रखते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से. यहाँ तक जाना है हमें और यहीं पे रोक लेंगे. ये हो गया 35 डिग्री एंगल. ठीक है. नेक्स्ट एंगल इज 45 डिग्री. सो अगेन वी प्लेस इट हियर. ठीक है. इसको रोटेट कीजिए और ओवरलैप कीजिए दोनों लाइंस. 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा. 45 डिग्री दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम पेंसिल और स्केल से यहाँ तक और इसको यहीं रोक लिया हमने. लेट इट बी नेम्ड. This is 45 degree. Next we have the angle 60 degree. Again we will place the protractor here. Again we will rotate और अब ये जो नया रेडियस बना है उसके साथ ओवरलैप करेंगे इस तरह से और अब 60 डिग्री एंगल मार्क करेंगे. यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जिस तरफ हमारा रेडियस है. आप देखेंगे 60 डिग्री एंगल यहाँ पे पॉइंट बनेगा. Now we can easily remove this. लेट अस जॉइन द 2 पॉइंट्स. यहाँ तक है और हम इसको यहीं तक रोक के रखेंगे क्योंकि हमारा सर्कल यहीं तक है. इट्स 60 डिग्री एंगल. और अब आप देखेंगे जो रिमेनिंग एंगल है ये अपने आप ही 200 डिग्रीज का होगा. सो वी कैन ईजीली राइट इट एज 200 डिग्री. और अब हमें सिर्फ ये लैंग्वेजेस यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है. दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग हिंदी. Then next we have English. Here we can write English. Then we have 45 degree Marathi. We can write here Marathi. This one. Here it is this one. Okay. Then we have Tamil. This figure. Then Bengali.
So this is the required pie chart. You can also color it and make it look more beautiful. So this was your exercise 5.2. Here we drew some pie charts and I hope you enjoyed drawing this. Also you can practice these figures and try to make up your own questions and try to make their pie charts. Soon we will meet again. Till then, goodbye.